الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ اما بعد، عزیز سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ ایک بندہ مومن کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف زمانوں میں معیار عزت دنیاوی پیمانوں کے مطابق مختلف رہے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ دنیا کے اندر جو عمومی پیمانہ عزت ہے وہ ہے دولت۔ جس کے پاس جتنی دولت ہوگی وہ اتنی زیادہ عزت لوگ کریں گے۔ تو گویا ایک معیار کون سا ٹھہرا؟ دنیاوی پیمانہ دولت، چاہے وہ حلال ہو حرام ہو یا جیسی مرضی ہو، تو وہ لیکن جو ہے وہ معیار عزت دولت ٹھہرا۔ اور یہ کوئی معیار عزت یورپ میں نہیں، یہ ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ علاقے کا معزز کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی معیار ایمان انسانیت یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کون سی چیز معیار ہے؟ دولت معیار ہے۔ اور یا دوسرے نمبر پر طاقت۔ طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پہلوان ہوگا، یعنی اس کے پاس وہ منصب و عہدہ یا وہ افرادی قوت۔ تو جس کے پاس کوئی عہدہ ہوگا ایڈمنسٹریشن میں یا کوئی بڑا سیاسی عہدہ ہوگا تو وہ بھی معیار عزت ہے۔ اسی طرح نسل، رنگ و بو، زبان، تہذیب و تمدن یہ بھی ہمارے ہاں معیار عزت ہے۔ بھئی دو ملکوں کے صدور بیٹھے ہوں، ایک یورپی ملک کا ہو اور ایک ایشیائی ملک کا، تو کس کی عزت زیادہ لوگ کریں گے؟ یورپی کی، کہ وہ رنگ و بو اور ان کی نسبت۔ ہاں، اگر آج سے جو ہے 1000 سال پہلے ہوتا تو پھر ان کی کوئی عزت نہ ہوتی۔ تو معیار بدلتے رہتے جو ہے وہ تہذیبی تمدنی معیار۔ تو لیکن یہ کسی کی دولت دیکھ کے عزت کرنا یا پھر اس کے عہدے کی عزت کرنا، تو اللہ کے نزدیک معیار کیا ہے؟ اچھا، جو آدمی صاحب مال و ثروت ہو تو اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا یہ کوئی مفہوم تھوڑا ہے کہ اگر وہ لائق عزت ہے، وہ صاحب ثروت ہے، مال والا ہے، لیکن غم گسار بھی ہے، غریبوں کے کام آنے والا بھی ہے، تو وہ بھی عزت کے لائق ہے۔ کوئی بڑا عہدہ ہے اور اس کا ایک مقام ہے، تو وہ اگر ملک قوم کی خدمت کرتا ہے تو وہ بھی صاحب عزت ہے۔ تو محض ایک دولت دیکھ کر کسی کے وقار کا اندازہ لگانا، یا ہم یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں کہ آپ صرف اسی آدمی کی عزت کریں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو یہ معیار غلط ہے۔ یہ معیار کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے مقام کو بیان فرمایا ہے کہ مومن کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کا کیا معیار ہے۔ گزشتہ جمعے کے اوپر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ جو انسانی عقیدہ ہے، اور خاص طور پہ عقیدہ صحیحہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کی حفاظت کی جائے، اپنے ایمان پہ محنت کی جائے۔ سارا جو انسان کو شرف
اور مقام ملے گا اس کے کس وجہ سے ملے گا؟ عقیدے کی وجہ سے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو مقام اعلیٰ ہوگا، عقیدہ غلط ہوگا تو اسفل سافلین ہوگا۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ یہ بیان فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو آدمی ایمان کا تختہ اٹھا لے، ہم ایمان کو کیا کر دے، انکار کر دے، تو فرمایا کہ فقد حبط عملہ، اس کے عمل کیا ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مشرک کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہو گئی۔ تو گویا اس کے بھی اعمال لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو فرمایا کہ بھئی اگر کوئی شرک کرے گا، تو یہاں تو بڑی ہستی کو مخاطب کیا گیا۔ مدعا یہ ہے کہ اے سننے والے، تو اگر شرک کی وادی میں گرفتار ہوگا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال کیا ہو جائیں گے، سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو ایک بات یہ بھی بتائی، یعنی شرک سے بھی کیا ہو جاتے ہیں، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کفر سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی جو اپنے پروردگار کا سے کفر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان بیچاروں کے جو اعمال، ان کے جو اعمال ہیں، او کرماد اشتدت بہ الریح، تو وہ ایسے ہیں جیسے مثال راکھ، جب شدید طوفان آتا ہے اور راکھ اڑتی ہے، راکھ بھاری دھات ہے یا ہلکی، وہ تو دھول ہوتی ہے نا، دھول کی طرح راکھ، ہوا کا ہلکا سا جھونکا آئے تو چھٹی۔ فرمایا فی یوم عاصف، طوفان والے دن جب طوفانی ہوائیں چلے تو اس میں راکھ بچے گی، اعمال بھی اسی طرح اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ ان کے جو اعمال ہیں کسراب بقیعۃ، ان کے جو اعمال ہیں وہ ریت کے گویا جو ہے وہ میدان کی طرح، وہ سراب کی مثال دی گئی، کا سراب، ان کے جیسے سراب ہو۔ اور وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ یہ گمان کرتا ہے کہ طمعان ماء، بھئی جو پیاسا ہوتا ہے وہ پانی کی کیا کرتا ہے، ہاں وہ چاہتا ہے، لیکن جب وہ قریب پہنچتا ہے جو ہے فلما جاءہ فلم یجدہ شیئا، جب وہ ادھر قریب پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں پاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارے ہاں گرمیوں میں سڑکوں کے اوپر بڑی ہی پتہ چلتا ہے کہ پانی کھڑا ہے، لیکن جیسے قریب جاتے جائیں گے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ ہوتا تو جو ہے کسراب بقیعۃ، صحرا جو میدان ہوتا ہے ریت کا، لیکن اسے کیا لگتا ہے، وہ گمان کرتا ہے جیسے کیا ہو پانی ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، مقصود کیا ہے، ایمان کے بغیر کوئی قدر نہیں۔ یہاں آج ہم جو آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر کسی انسان کے اللہ کے ہاں عزت ہے، کسی انسان کے اللہ کے ہاں وقار ہے، اس میں تین بنیادی خوبیاں لازمی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ وہ انسان صاحب ایمان ہو، ایمان کے بغیر تو وہ قربت حاصل نہیں کرتا، وہ معیت عامہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر مخلوق کے ساتھ ہے، وہ معیت عامہ ہے، لیکن اس کی جو رحمت خاصہ ہے اس کا حقدار اس وقت بنے گا جب ایمان والا ہوگا، جب تقوی والا ہوگا۔ اب یہ ایمان والا ہونا نظر نہیں آتا، بھائی بندہ فوج میں ہے تو یہاں پہ بیج لگ جاتے ہیں نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ جنرل صاحب ہے، اور یہ بریگیڈیئر صاحب ہے، اور یہ کرنل صاحب ہے، یہ میجر صاحب ہے، یہ کیپٹن ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ وہ تو ظاہر سے اپنی یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ جو مومن ہے نا، یہ اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔
अब ये तो नहीं है कि वो बंदा मोमिन है तो उसके इधर कहीं कोई निशान लगा होगा, बस ज़ाहिरी निशान तो नहीं है ना, बाज़ वो मेहराब सी भी बन जाती है बाज़ लोगों के, तो वो अगर साफ़ कर ले उतर जाती है। ये जो लोग नमाज़ बेशुमार पढ़ते हैं वो फिर मिटा देते हैं, तो वैसे भी मिटा ही देनी चाहिए। तो वो जो है कहने का मतलब ये है कि भई ये कोई अलामत थोड़ी है। तो ईमान नज़र नहीं आता, तक़वा नज़र नहीं आता। तीसरी चीज़ है किरदार यानी आमाल। यानी ये 3 चीज़ें, हाँ 3 ख़ुसूसियात हासिल हों तो इंसान आला मियार का, अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाला। कौन सी चीज़? ईमान। ईमान की कदर, ईमान को हासिल करना, ईमान पर साबित कदम रहना, ईमान पे कुर्बानी देना। अगरचे नज़र नहीं आता, बहुत सारी फ़ुज़ूलियात से आपको रोकेगा। तो वहाँ जाएँगे तो वो फिर ईमान के मनाफ़ी अफ़आल में शामिल होंगे, तो फिर ईमान की क्या हैसियत रही? कोई भी नहीं, वो तो सिर्फ़ एक ख़याली तसव्वुर कायम हो जाएगा। तो जी सामईन इकराम, ये लाज़िम व मलज़ूम है कि इंसान ईमान, अमल और तक़वा को हासिल करे। तो तक़वा ही आमाल के ज़रिए दरअसल हासिल होता है। तो एक दोस्त है, तो वो बाहर गैर मुल्क जाते हैं लोग मुसलमान, तो वो जी वो वहाँ शराब खाने होते हैं, बार होते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो जी मैं कौन हूँ? मैं जी बार कीपर हूँ, चौकीदार हूँ उसका, शराब खाने का। तो शौक मुसलमान है और चौकीदार का किस चीज़ का है? शराब खाने का। या वो उसी बार पे क्या करता है, या वो शराब वाले बार पे काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीता नहीं हूँ, बेचता हूँ। तो ये भी गलत बात है, यानी उसमें कोई इस्लाम इसका कोई जवाज़ नहीं देता। भई आप जब पीते नहीं हैं, एक गैर शरई चीज़ है, गैर अखलाकी चीज़ है और शरीयत के भी खिलाफ चीज़ है। भई एक तो होते हैं ना, इस्लाम ने किसी ज़िद की वजह से छुड़वाई हो ना, भई ये प्रोडक्ट हमारे इलाके की नहीं है तो चलो छोड़ दो। खुद अरब शराब के रसिया थे। आप शराबी लोगों की ज़िंदगी देख लें, वो पहले तो मरते ही जल्दी हैं। शराबी आदमी, फिर उनका ज़हनी तवाज़ुन भी ख़राब रहता है। लड़ाइयाँ, फ़साद जो है ना, वो जिस तरह है कि उम्मुल ख़बाइस है, ये जो शराब है, ख़म्र जो है उम्मुल ख़बाइस है, तो वो पूरी होती है। यानी शराबी आदमी को पता चलता है शादियों पे लड़ाइयाँ, पौतियों पे लड़ाइयाँ, ये जिधर वो शराब शराब पहनेगा यानी पिएगा, कभी वो बीवी को तलाक दे देगा, कभी कोई चीज़ बेच देगा, किसी बच्चों पे मारना शुरू कर देगा, कभी हमसायों के पेश पड़ जाएगा। तो कोई अच्छी चीज़ होती तो फिर तो चलो हम मानते, तो वो है भी अच्छी चीज़ नहीं। मकसूद क्या है? मकसूद ये है कि भई जब आप के यहाँ इस्लाम में शराब पीने की जो है इजाज़त नहीं, वहाँ शराब बेचने की ऐसे इदारे हैं भई, बार अटेंडेंट और बार कीपर वग़ैरह या वेटर वग़ैरह जो शराब सर्व करते हैं, तो ये इस तरह की नौकरी भी सही चीज़ नहीं है। अल्लाह का रिज़्क फ़राख़ है, कोशिश करके जो है और कहीं रिज़्क का बंदोबस्त करे। हाँ, हो सकता है कोई कहीं देर हो जाए, तो वो भी एक आज़माइश है, लेकिन अल्लाह ताला आज़माइश के बाद इन्ना मअल उसरि युसरा, तो फरमाया कि हर तंगी के बाद आसानी है। और 2 बार अल्लाह ताला ने बताया, तंगी कोई भी हो, आसानी हम ज़रूर पैदा करेंगे। अब ये जो आयत करीमा थी जो हमने इब्तिदा में पढ़ी, मन कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ। फरमाया कि जो आदमी क्या चाहता है? युरीदुल इज़्ज़ा, जो इज़्ज़त चाहता है, तो ये हर आदमी चाहता है। जब उसका पेट भर जाए, तो फिर वो ये माँग ज़रूर करता है। कहता है अब रोटी तो खैर से चल रही है, अब जो है ना बड़ा घर, और जब ज़रूरियात पूरी हो जाएँ तो वो माँग करता है कि अब मैं मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल हूँ, इज़्ज़त भी मेरा हक़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तो ये बताया कि फरमाया कि तुम में से कोई भी इज़्ज़त चाहता है, और फ़ितरत है, तबा है, और हर इंसान चाहता है, ये तो नहीं चाहता कि मुझे कोई गालियाँ दे, तो हर कोई यही चाहता है कि उसकी इज़्ज़त हो। तो इज़्ज़त के लिए किरदार की ज़रूरत है। वो
अल्लाह के यहाँ भी उसका मकाम हो जाएगा। अगर वो किरदार ना हो तो फिर माल की इज्जत हो, मुंह पे तो चलो करते हैं लोग, होती भी मुंह पे इज्जत है ना, मुंह पे कर ली और बाद में छुट्टी, बाद में फिर गालियां दी। अच्छा, फिर वो इमोशनल जो है ना, वो उसे कहते हैं, इज्जत तो नहीं कहते, उसे खुशामद कह सकते हैं। तो इमोशनल या जज्बाती लगाव नहीं होता उनसे। अगर कोई उनको खास तौर पे कोई उनको तकलीफ में भी देखे तो वो खुश होता है, कहता है ठीक है जी। मकसूद क्या है कि वो इज्जत की को खुशामद को इज्जत समझ बैठते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मन कान युरीदुल इज्जत, जो आदमी इज्जत चाहता है तो ज़ात बारी ताला ने फरमाया कि फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, सारी की सारी इज्जत किसके पास है? इन इज्जत का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। इज्जत का मालिक हकीकतन कौन सी जात है? हकदार भी वही है, एक बांटने वाला भी वही है। वो जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जो है रुसवा करे, तो वो उसी की मर्जी पे मबनी है। तो इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता रहे कि उसके ऐबों पे पर्दे डाले और उसे अपना कुर्ब जो है वो इस्तगफार के ज़रिए से उसका कुर्ब हासिल करता रहे। तो जी सामीन किराम, अब यहाँ अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े जामे अंदाज में बयान फरमा दी कि इज्जत किसके पास है? अल्लाह ताला के पास है। इज्जत का मालिक अल्लाह ताला है, हकदार भी अल्लाह ताला है। सबसे पहले तो किसकी इज्जत मोहब्बत करनी है? अल्लाह ताला से। उसका एहतराम, उसका वक़ार, तो उसका नाम क्या लेना है? इज्जत से लेना है या नहीं? हमारे यहाँ जिसकी जो वैल्यू होती है वो उसके नाम को उतना बड़ा तकद्दुस होता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने ये बताया कि देखिए, जिस आपके नज़दीक जो है जिसकी ज़्यादा अहमियत होगी तो आप उसका एहतराम भी ज़्यादा करेंगे। तो जहाँ फिर हमारी जो दरबार शरीफ है, तो वहाँ पे वो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पे एक उन्होंने वो उनको तंग करने के लिए एक झूठा मुकदमा जो है आज से 50-60 साल पहले जो है वो दर्ज कराया कि इन्होंने हमसे भाई कोई 20-1 हज़ार लिए हैं। अब ज़ाहिर है कि वो उस ज़माने में तो 70 साल पहले तो एक बहुत बड़ी रकम थी। तो वो तो मंशूर ये था कि भाई इज्जत को नीलाम किया जाए और तंग किया जाए, ये जो दीन की बातें कर रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब किया जाए। तो खैर वो एक आदमी, बारहा दफ़ा चूँकि आपने ये वाक़या सुना होगा, वो एक आदमी जो पंजाबी स्पीकिंग था, तो बाहर से उस ज़माने घोड़ियों पे आते थे, तो घोड़ी पे आया और अपने वो जो है खुर्दीन में 20,000 लेके आया। उसने कहा कि बात सुनो भाई, तुम ना कसम उठा दो तो 20,000 ले लो। भाई अगर तुमने पैसे दिए हैं तो मैं 20,000 ले आया हूँ, तुम बस कसम उठा दो और 20,000 तुम ले लो। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, कसम चाह गिने। तो वो बड़ा सियाना आदमी था, उसने कहा ये अल्लाह की कसम नहीं चाहनी। किसकी कसम? अल्लाह ताला की कसम नहीं चाहनी। दरबार शरीफ दा कुंडा फदो, इन्हीं कसम तो डाडे दी। यानी दरबार का कुंडा पकड़ के फिर कसम उठा, वो ऊंधी कसम न चाह सके। तो भालो 20,000 की। तो कहने का मकसूद यह है, तो वो जो जिसकी इज्जत ज्यादा होती है, उनको तारुफ भी जो था ना वो अल्लाह ताला को थोड़ा था, और तारुफ भी तो भाई दादाजी दा है। तो दादे के नाम पे झूठी कसम ना उठा सका, अल्लाह ताला के नाम पे कसम उठा ले। इस तरह की कई और मुशाहिदाती वाक़यात हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा हक किसका है? अल्लाह ताला का हक। तो अब जो आदमी अपना जो है वो ये नहीं रखता हक, तो वो बेचारा जानता ही नहीं है। तो वो ये एक और इसी तरह की एक मिसाल है, पता नहीं सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ चलो ये भी जो है तारीख का हिस्सा बन जाए। तो जो दरबार शरीफ की मगरब वाली
गली है ना, तो अब वो इधर मशरिक है गली है और फिर इधर मगरिब है। तो वो ना लड़के दोनों जा रहे थे तो बालिग, तो उनको ना एक को पेशाब आ गया छोटा ना, वो अब वो ना गली थी दोनों तरफ ना, शुमालन जुनूबन गली है और मशरिक में जो है दरबार शरीफ और मगरिब में किबला है। तो अब वो ना उसने ना मगरिब वाली तरफ बैठ के ना पेशाब करना शुरू कर दिया। तो वो उसने पेशाब कर लिया तो उसने कहा भाई जो है ना भाई ये किबला है, किबले दा एहतराम है। तो कहता हाँ तो इधे कर हुए दादा नेड़े पहुंचा भाई। हाँ भाई दरबार करीब थी ना क्योंकि दीवार थी, कहते इधर वो दरबार करीब पड़ती था, किबला चलो दूर है ना, तो आपे वाला जैसी है ऐसी। तो कहने का मतलब यह है कि भाई उनके यहाँ जो है वकार जो था ना, तो वो वकार किस चीज का था या एहतराम, तो जाहिर है कि वो जो चीज वो सारी जिंदगी हम सुनेंगे, तो सारी जिंदगी जिसका हम एहतराम करेंगे हमारे यहाँ, हम भाई किस चीज पूरे ये पूरे शहर में दरबार से ज्यादा किसी मस्जिद के वो वकार है। दरवाजे को कांड नहीं करें देख ले, मस्जिद में ऐसे एहतराम चलते हैं। और बस बैठे थे, मकसूद क्या है, मकसूद है कि भाई वो चूंकि उनका वो सुना भी वही है सारा, बस वो क्या कहें। अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया कि ये फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, और फिर जो आदमी अल्लाह ताला की शान का एहतराम नहीं करता, उसका वकार का एहतराम नहीं करता, तो फिर वो खुद बड़ा जलील व ख्वार हो जाता है। फिर वो जो है वो खाक होकर बस न दुनिया में कोई इज्जत हासिल कर सकता है, ना आखिरत में उसको कोई जो है अल्लाह के यहाँ मामला उसके साथ अच्छा हो सकता है। इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू ने दो और खूबियाँ बयान फरमाई, फरमाया कि अगर तुम ये खूबियाँ हासिल कर लो हमारे नज़दीक तो बड़े दर्जे के हामिल हो। वो कौन सी हैं? तो जब इज्जतें बांटने वाला बता रहा हो तो फरमाया कि यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, फरमाया कि एक तो वो लोग जो तुम में से ईमान लाए, अल्लाह ताला इनको बुलंद फरमाते हैं। किनको बुलंद फरमाते हैं? किन लोगों को, किन के दर्जात को? अल्लज़ीना आमनू, जो लोग क्या करते हैं, ईमान लाते हैं तुम में से। फरमाया कि ये इन लोगों को हम वकार देंगे, इज्जत देंगे, दर्जा देंगे, ये इनके मकाम बुलंद हैं, अल्लाह ताला इनके मकामों को बुलंद फरमाते हैं। तो एक ये बात, दूसरी पढ़ के फिर पहली की वजाहत करते हैं। फरमाया कि वो लोग भी वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अब दो यहाँ इस आयत के अंदर दो बातें बताई गई। एक ये बताया गया कि अल्लाह ताला किन के दर्जात को बुलंद फरमाते हैं, रफ़ा दर्जात किन के होते हैं? अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो तुम में से कौन है, साहिब ईमान है। और दूसरे वो लोग वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया, उनके दर्जात उनके भी हम रुतबे बढ़ाते हैं। अब हमें मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नज़दीक दो तरह के लोगों को के बड़े ही आला मकाम मिलते हैं। अगर वो दोनों खूबियाँ हों तो बड़ी ही उम्दा बात है। पहली खूबी ये है कि ईमान, जिसकी हम कोई कदर नहीं करते। हालांकि ईमान एक ऐसी कुव्वत है कि जिस पे जो है इंसान जान दे देता है। वो आखिर कोई किसी बात का फैसला ना हो रहा हो तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई इससे जो है कसम उठवा लो। तो ये झूठी कसम खाता है या सच्ची, तो अगर वो माली मनफियत के लिए जो है वो कसम उठा लेगा तो फिर ईमान खत्म।
तो फिर तो और मामला हो जाएगा ना। हमारे यहाँ तो ताजिर हजरात या लेन देन करने वाले तो वो तो यही कहते हैं कि लानत भेजो ऐसी जुबान जो घाटा दे, वादा खिलाफी उसूल बन जाता है। फिर कहते हैं कि भाई वो जो है अल्लाह गवाह है कि ये हमारी खरीद नहीं है, तो वो फिर उसी खरीद से भी नीचे उनको दे देते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये ज़ाहिर में तो तिजारत है, हकीकत में वो ईमान भी बेच रहा है। हालांकि रोज़ी का सबब अल्लाह ताला बनाने वाले हैं, तो झूठी खबरें या कस्में उठाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा हो सकता है कि भाई करे बंदा। तो तो इंसान जो है वो इस मामले में झूठी कस्में ना उठाए, कोई मामला ही हो, यानी ज़िंदगी तक का मामला हो फिर भी झूठी कसम ना उठाए। तो एक वाक़या मैंने बारहा दफ़ा यहाँ पे अर्ज़ किया है कि एक जो ये खानेवाल के करीब का वाक़या है, तो वहाँ जो थे एक गरीब आदमी को के बेटे को किसी जागीरदार के बेटे ने कत्ल कर दिया। अब चूंकि वो ताकतवर लोग थे, कत्ल तो हो गया, गवाही कोई ना दे। अब कौन दे गवाह, सारा कुछ वो दरखास्तें जा रही हैं, सारा कुछ उसने जो वो गरीब आदमी था, उसने कहा कि जज साहब से कि आप जो है इसके वालिद को बुला लें, इस लड़के कातिल के वालिद को। अगर वो कह दे कि भाई इसने कत्ल नहीं किया तो मैं केस भी उठा लूंगा, तो वो कह दे तो बस बात खत्म हो जाएगी। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, कौन मेरी सुनेगा या कौन नहीं सुनेगा। तो बस अगर वो कह देगा कत्ल किया है तो ठीक है, नहीं किया तो बस खत्म है, उठा दूंगा केस। खैर वो जज साहब ने उस चौधरी साहब को या कोई था नाम उनका, उनको कहा कि भाई हाँ भाई दें गवाही। तो उससे पूछा जज ने भी ये कत्ल किसने किया है, क्या आपके बेटे ने किया। उसने कहा हाँ मेरे बेटे ने किया। तो क्योंकि उस गरीब आदमी को पता था कि ये जो हमारे जागीरदार साहब हैं, इनकी जो मर्जी हो जाए ये झूठ कभी नहीं बोलते, चाहे गवाही अपने बेटे के खिलाफ ही क्यों न देनी पड़े। तो उसने, क्योंकि उसका सच उसका एक जिंदगी का असासा था, तो उसने कहा बिल्कुल मेरे बेटे ने कत्ल किया। तो खैर वो उस आदमी ने कहा बस अब मैं ये केस उठा लेता हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे के खिलाफ गवाही दी है, कोई छोटी बात थोड़ी होती है। तो मकसूद क्या है भाई, इंसान जो है ईमान की कदर करे। मैंने इसमत फरोख्त की है फ़कत एक फाका को टालने के लिए। लोग यज़दा को बेच देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। एक फ़ाहिशा औरत, ये बहुत बुरी बात है कि वो अपना रिज़्क अपनी इस्मत दरी से हासिल करती है, जबकि अल्लाह ने इसको जहाँ हराम किया है वहाँ उसे हाथ भी दिए हैं और उसके लिए मौक़े भी दिए हैं। लेकिन वो चूँकि उसकी बुरी आदत होती है तो वो भी एक बुरा फ़ेल है। लेकिन एक शायर उस हवाले से एक जो है तमसीलन बात कर रहा है कि मैंने इस्मत फ़रोख्त की है फ़कत एक फाका को टालने के लिए। लोग तो यज़दा को बेच देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। कहते हैं मैंने तो रोटी के लिए इज़्ज़त बेची है, लोग तो अपने खुदा को बेच देते हैं। भाई इज़्ज़त बेचना और ईमान बेचना ये दोनों बराबर हैं। अगरचे औरत का इज़्ज़त बेचना, उसकी तो औरत है भी इस्मत से ना, इस्मत ना हो तो औरत क्या है। लेकिन एक मर्द होके ईमान बेच दे, खुदा बेच दे, उससे भी बुरा होता है कि जो आदमी शख्स को भी नापसंद फरमाते हैं। तो ज़ात बारी ताला चाहते हैं अगर तुम हमारे यहाँ इज्जत चाहते हो, वक़ार चाहते हो, हमारे यहाँ कोई तुम्हारा अगर भाई कोई मिआर है, वो ये है कि तुम में से जो साहिब ईमान होगा, ईमान पर मज़बूत होगा, दुनिया का कोई लालच, कोई मजबूरी, कोई और चीज़ उसे नेकी से या बेईमानी से जो है वो करने पे उसको राज़ी न कर सकेगी। और दूसरा आदमी वो है कि जिसको इल्म दिया गया, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिसको इल्म दिया गया। अज़ीज़ सामिन किराम, ये इल्म से मुराद कोई भी इल्म है नहीं, इल्म से मुराद अल्लाह ताला की मारिफत है। कुरान मजीद में जो इल्म फ़र्ज़ किया गया है
वो है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद बाकी जो उलूम हैं उनमें जो इल्म इंसानियत की फलाह के लिए हो, चाहे वो उसकी अपनी ज़ात हो, माशरा हो, तो उसकी भी एक अपनी मकाम और शर्फ है। अगर ये फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह सही न हो, तो लेकिन उसके पास बाकी उलूम हो, वो लोगों का दुनियावी इलाज करता हो और बेहतरीन मुआलिज तबीब और डॉक्टर हो, भी वो तो वक्ती फ़ायदा देगा ना, और उससे वो अपना वक्ती फ़ायदा सरमाया हासिल करेगा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हासिल कर लिया, तो उसने जन्नत की चाबी हासिल कर ली। तो प्रॉपर्टी है ना जन्नत, जन्नत की चाबी है। जिस तरह कहते हैं कि इसको घर की चाबी दे दी, नए घर की, तो फरमाया ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है और आमाल इसके धंधे हैं। तो जब ये करेगा तो इंशाल्लाह इससे वो हासिल करेगा। तो अजीज सामीन किराम, तो अल्लाह ताला ने ये दो कानून बताए। एक था यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और ये अल्लाह ताला ने एक बात बताई कि जो तुम में से साहिब ईमान हैं, अल्लाह ताला उनके दराजात, उनके मामलात, उनकी शान को बुलंद फरमाते हैं। और वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो जो साहिब इल्म लोग हैं उनके भी अल्लाह तबारक व तआला दरजात बुलंद फरमाते हैं। तो भाई ईमान और इल्म, तो ये महफिल जो है, जहाँ ईमान मजबूत होता है वहाँ इल्म भी मिलता है। आज अकायद के दायरे तक महदूद नहीं, वहाँ तो आपको आमाल सालिह, खूबसूरत तरीन किरदार, बेहतरीन मामलात, खूब बेहतरीन जो है उसने माशरत की आला तरीन तालीम मिलती है। तो बदकिस्मती से हम जो है ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन जब हमारी आजमाइश का वक्त आता है तो हम जो है उसमें फेल हो जाते हैं। हमारी तरबियत नहीं होती, हमें इल्म नहीं होता कि हमने यहाँ गुस्सा करना है, संजीदा होना है, यहाँ हमने बात को ठंडे दिल से करना है, हमने फसाद बढ़ाना है या फसाद कम करना है। ये सारी बातें जब तक वो इल्म नहीं होगा और उसकी तरबियत नहीं होगी, वो कैसे हासिल होगी? वो यही कि जो इंसान कुरान मजीद की कुर्बत हासिल करता रहे। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इसी तरह फरमाया कि जिनके दर्जात पहले बताया कि बुलंद होते हैं, उनमें एक लोग ये भी है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम, इज्जत वाले, शान वाले वो लोग हैं। कौन? अतकाकुम, जो साहिब तकवा, साहिब तकवा लोग अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले लोग हैं। तो जी सामीन किराम, अब तकवा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बाजार से खरीदी जाए। बाजार से मिलता है भाई, कोई ये गुलकंद है या गुड़ है या कोई मेवे हैं या मेडिकल से कोई इंजेक्शन है कि लगाएंगे और तकवा आ जाएगा। नहीं, तकवा एक कैफियत है, एक एहसास है कि जो एक अमल के बाद हासिल होता है। क्या है? एक अमल करने के बाद हासिल होता है। तो तकवा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी खौफ खुदा रखेगा, जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा, जो आदमी जो है बुराइयों से बचेगा, जो आदमी गुनाहों से दूर रहेगा और जो आदमी नेकियों की तरफ गालिब रहेगा, फरमाया कि यही तकवा है। तकवा की ये अलामात हैं कि इंसान जो है वो बिखरता नहीं। इंसान जो है अगर कहीं वो खो भी जाए तो फौरन जो है वो सीधी राह पे आ जाता है। तो तीसरी खूबी ये थी कि ईमान पहले, इल्म दूसरे नंबर पर, और इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क्या बताया? तकवा। तकवा जो है ना, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और कोई और चीज़ भी जब तक उसे पकाया ना जाए तो उस वक्त तक उसके अंदर वो मजबूती नहीं होती। तो आपने एक बर्तन बनाया है मिट्टी का, उसको पकाएंगे ना, उसको एक वक्त चाहिए। तो ये अमल की जो है कठौली से ये जो इंसान निकलता है तो फिर तकवा हासिल होता है। ये नहीं है कि अभी ये काम किया तो शाम को निकला है तकवा। तो किसी भी लजीज खाने को पकाने के लिए उसको एक
अमल से गुजारना पड़ता है, और उसको जितने बेहतरीन अमल से गुजारेंगे तो वो उतना ही लजीज बनेगा। तो ये अमल साले को खूबसूरत तरीकों से करना तकवा है। अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून। रोज़े का हासिल क्या है? ब्लड प्रेशर सही हो जाता है? नहीं, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम तकवा हासिल करो। रमज़ान के बाद तुम में ऐसी रूहानी ताकत हो कि तुम अच्छाई और बुराई को महसूस कर सको, और बुराई से बचने की पूरी कोशिश हो, और नेकी को करने की रग़बत, ये तकवा का मियार है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ये भी इसी तरह ये बात बयान फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो आदमी ईमान की दौलत से माला माल हो जाए और क़ुव्वत ईमानिया से वो मुज़य्यन हो, तो फरमाया उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि हम फिर ऐसे ये लोग हैं, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, तो अल्लाह जल्ल शानहू उनके दिलों पर ईमान पर वस फरमा देते हैं। ये लिखा माना होता है किसी चीज़ का मजबूत होना। तो फरमाया कि हम इनके दिलों में ईमान को इतना मजबूत डाल देते हैं कि ये हिलते नहीं। फिर इनके अंदर हम ऐसा मामला करते हैं कि ये इनके अंदर एक रूहानी ताकत वो पूरी की पूरी पैदा हो जाती है। अजीज सामईन किराम, अब जब ज़ाहिर है कि ये कोई कीमती धात होगी, चाहे वो जितनी ही धात हो, उसको वही जानेगा ना जो उसका फ़हम रखता है। तो अब मसलन कोई कीमती मोती हो, चाहे वो जो है वो ऐसा मोती हो जो जिसकी कोई मिसाल ना हो, तो जौहरी के सिवा कौन जान पाएगा कि क्या चीज़ है। तो हमारे मुआशरे में भी इसी तरह है कि लोगों में चूँकि वो अंधे होते हैं, वो सही और गलत को इम्तियाज़ नहीं करते। तो वहाँ मियार इज़्ज़त और हैं, जिस तरह हमने वो सारी बातें पहले आपके सामने अर्ज़ की कि मुआशरत का मियार इज़्ज़त का क्या होता है, वो दौलत होता है या एक मनसब होता है, उसी के ऊपर ये सारा खड़ा होता है। तो मैं कि ये तो दुनिया का मियार है, हमारे यहाँ मियार क्या है? जिसको हमने ईमान की दौलत दी, जिसको हमने इल्म से माला माल किया। इल्म जो नाफ़े इल्म होता है वो कोई सकेल ही क्यों ना हो, ये हमेशा इंसान की इज़्ज़त बढ़ाता है और उसको रिज़्क में भी बढ़ावे का बायस बनता है। तो इसलिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ उसका सीखना इबादत बन जाता है। जी सामीन किराम, इल्म, ईमान, तकवा, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने बताई कि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी आए तो ये लेके आए। क्या चीज़ लेके आए? ईमान। एक गरीब आदमी भी ईमान का आला दर्जा हासिल कर सकता है। इल्म देखें, आज जितनी भी महंगाई हो, आप देख लें कि भई फिर भी मसाजिद में जुम्मा का बयान है, आपसे कोई टिकट लिया है या पैसे लिए हैं? और या फिर ये जो रोज़ के दुरूस होते हैं सुबह-शाम, इनकी कोई टिकट होती है या आपसे फ़ीस होती है? तो इट्स फ्री। लेकिन फिर भी वो जो है ना, ये अल्लाह ताला ने ये मौक़े दिए हैं। क्या दिए हैं? अल्लाह ताला ने मौक़े दिए हैं ताकि भई भई एक ईमान की मज़बूती से, इल्म की राह से और अमल के मौक़े दिए हैं। बंदा तो कहता है नमाज़ फ़र्ज़ ही ना हो गया ना। हमारे यहाँ कितने लोग कहते हैं भई ये 5 नमाज़ें भी फ़र्ज़ ना होती तो क्या बात थी, जान ही छूट जानी थी। तो अल्लाह ताला को ये सारा पता है। फरमाया हमने इसलिए की कि ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। एक तो तुम्हारा किबला दुरुस्त रहे, दूसरा कोई भाई पल्ले भी हो ना, मैं जन्नत जाना है तो खाली मुफ्त में भेजेंगे, कोई नेकियां भी हो ना। चलो बंदा 5 बार नमाज पढ़ लेता है, और वो भी अब ये तो नहीं है कि हम मरीज हैं बैठे रहें हिले ना, वो तो फिर बंदा और मरीज हो जाएगा। तो उसके लिए चलो नमाज पढ़ता है, वो भी एक जो है हिलता है, एक सोशल सर्कल बनता है, फिजिकली भी एक्टिविटी होती है, और इंसान जो है फिर जहाँ महव होता है वहाँ से निकल कर फिर इबादत में महव हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये मौक़े दिए हैं, ये मौक़े के ज़रिए से फरमाया कि हम तुम्हें एक नेमत देंगे, वो क्या होगी? तकवा होगी। अब ना तकवा नज़र आता है और ना जो है ईमान नज़र आता है,
और सही इल्म भी अगर कहें तो फिर वो मिसाल लोगों के पास कितने पैमाने हैं कि जिसको ये पता चले कि ठीक बात ये है, गलत बात ये है। हाँ, तो ज़्यादा ऊँचा बोलने वाला और ज़्यादा लंबी तकरीर करने वाला वो बड़ा होता है। तो मकसूद क्या है कि भई ये पैमाने हमारे यहाँ वो उस तरह से नहीं हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने बताया कि अगर तुम हमारे यहाँ इज़्ज़त चाहते हो, वक़ार चाहते हो, तो कोई पैसे लेके नहीं आना आपने। या कोई भाई कोई आपने बड़ा तीर मार के नहीं आना, आप ईमान लेके हैं, हम तुम्हारे कदरदान हैं, आप शऊर लेके आए, हम तुम्हारे कदरदान हैं, आप इबादत के ज़रिए तकवा लेके आए, हम तुम्हारे कदरदान हैं। तो ये चाहिए हमें, ये चीज़ें चाहिए। ये देखें ये तो ज़िंदगी ख्वाब की मानत है, कल हम बच्चे थे आज यहाँ बैठे हैं और ऐसे ही कल जो है वो कौन यहाँ रहेगा? किसी को है वो हासिल? कोई बुजुर्गी, कोई डॉक्टरी, कोई चीज़ भी मिसाल जो है ना, वो आपको बरकरार नहीं रख सकती। कोई शय रख सकती है? आला तरीन ग़िज़ा, बेहतरीन मुआलिज और बेहतरीन परहेज़ भी आपको बका नहीं दे सकता। तो आखिर हर सब ने, हर आदमी ने कुछ करना है। तो जी सामीन किराम, तो हमें चाहिए कि हम तो शय आखिरत के लिए ईमान जो जिसकी आज मुआशरे में कोई उस तरह की वैल्यू नहीं है या अहमियत नहीं है। ईमान की कौन कदर करता है? बल्कि किसी को ईमान की बात करें तो उन्हें वैसे बुरा लगता है, कहते हैं भाई जो है ना आप ये वुज़ू के तरीके बताएं और गुस्ल के तरीके बताएं और ये बताएं। उनकी अपनी जगह एक अहमियत है, लेकिन ये याद रखें ये जो कुरान मजीद का पूरा मौजू है किस चीज़ का है? वो ईमान था ना। असल में ये था कि इंसान का अंदर पाक करना है आपने। जब वो मान लेगा ना, अबू जहल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तबलीग करते थे? उसको ईमान बताते थे ना कि हाँ ये ईमान है, ये बातें हैं, ये आखिरत का तसव्वुर है, ये सारी चीज़ें अल्लाह जल्ल शानहू ने ये बातें बताई। अब ये आखिरी आयत पढ़ के इक्तफ़ा करते हैं। फरमाया कि वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि इज़्ज़त के 3 ही अलामतें हैं, 3 ही हैं। एक तो इज़्ज़त है अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला का जो एहतराम है, जो आदमी अल्लाह के नाम का एहतराम न करे, झूठ झूठ बोल दे अल्लाह ताला का नाम लेकर, तो किसी तरह से और गुस्ताखी करे, तो वो फिर अपना अंजाम देख ले। तो सबसे बड़ी शान किसकी है? अल्लाह ताला की है। इसलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ आज़ान कहते हैं अल्लाहु अकबर। तो वही फरमाया कि ओ ऐसी बड़ी ज़ात जिसका कोई कोई मुकाबले में आ ही नहीं सकता, इतनी अजीम ज़ात है। वली वली रसूलिही, दुनिया में बड़े-बड़े लोग आए, अनगिनत अपने नफूस छोड़े, बड़ी ताकतें छोड़ी, वली रसूल, लेकिन जो इज़्ज़त है वो किसकी है? हाँ, चाहे वो हज़रत मूसा हाथ से पानी पीते थे, हज़रत इब्राहीम पैदल सफ़र करते रहे, लेकिन आज उन्हीं का नाम ज़िंदा है और जिनके लश्कर निकलते थे और चाबियाँ उठा के वो सारे धुमसा दिए गए। फरमाया इज़्ज़त चाहते हो तो फिर ये याद रखना किसकी है? अल्लाह की इज़्ज़त है, उसके रसूल की इज़्ज़त है, वलिल मुमिनीन और हर बंदा मोमिन की इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला हर बंदा मोमिन के बारे में फरमाया कि हमारा अखलाकी, समाजी, माशरती फ़र्ज़ है कि हम हर बंदा मोमिन की इज़्ज़त करें, दिल से इज़्ज़त करें, खुशामद नहीं बल्कि ज़ाहिर मोमिन जो होता है उसके तो किरदार चूँकि ऐसा होता है कि मोहब्बत हो ही जाती है। तो ये अल्लाह ताला ही मोहब्बतें पैदा फरमाने वाला है। तो फरमाया कि ये मोमिनीन से मोहब्बत करें। हर हर तबका के आदमी जो भी ईमान कामिल रखता है, नमाज़ पढ़ता है, नेकी की तरफ राग़िब है, वो अल्लाह के यहाँ जब मुकर्रम है, तो इंसानों के यहाँ भी मुकर्रम होगा। तो हमें अखलाकी तौर पर ये मामला करना चाहिए। जहाँ अल्लाह ताला की शान और मकाम है, यहाँ अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलंद आवाज़ से कहने वालों को भी फरमाया कि बस ये ना हो तुम्हारा हम ईमान ज़ाया कर दें। तो जहाँ मकाम इलाही है, वहाँ मकाम रिसालत भी, उसका भी एहतराम ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं, फिर उसके बाद है वो लिल मोमिनीन, और अल्लाह ताला ने जिनको मोमिन कहा है, वो हैं पहले तो सहाबा है, लेकिन हर दर्जा के लोग थे, क्योंकि वो खैरुल कुरून थे। कुरान ने जिन अलक़ाबात से बयान फरमाया, एक उनका तारुफ़ है जो कुरान हमें देता है और एक उनका तारुफ़ है जो तारीख़ हमें देती है। तारीख़ लिखने वाले खुद और पेश करने वाली किताबें, इनकी क्या हैसियत है? मिसाल इस पे अलग बयान हो सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन का जो बयान फरमाया है मक़ाम और शान, तो अगर कोई आदमी उसमें ज़ेर व ज़बर कर दे, तो वो एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी का शिकार हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। वाक़िअ।